Assalamualaikum. I'm going to describe you how to find the value of unknown by using quadratic formula. How to find an unknown by using quadratic formula कि किस तरह से हम लोग quadratic पहले तो किस तरह से हम इक्वेशन को एक्सपेंड करते हैं, इक्वेशन को हम फॉर्म करते हैं and then how to solve it by quadratic formula. ठीक है. First of all, I'm going to describe you the question. The diagram shows a rectangle. This is a rectangle whose length is 2x plus 3, whose width is x minus 1. Okay? Length and width of the rectangle is given to you. Length and the width of the rectangle is given to you. Area of rectangle is 12 centimeter square. Area is also given to you. Okay? So they are asking to form an equation in x and show it reduces to 2x square plus x minus 15 is equal to 0. They are asking कि भाई इसको आप सिंप्लीफाई करो, इसको आप एक्सपेंड करो और इसको शो करें कि ये एक्सपेंड होने के बाद, ओपन होने के बाद इट फॉर्म्स 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. रिड्यूस होने के बाद ये एक्सप्रेशन बनेगी. तो हमारे पास जो गिवन है एरिया हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. The formula for finding out the area of rectangle is length multiplied by width. The formula for finding out the area of rectangle is length multiplied by width. Why we are applying this formula? Because हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो एरिया की गिवन है. अगर हमारे पास पेरीमीटर गिवन होता है तो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर. ओके, अच्छा जी. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन विच इज 12. Area of rectangle is given to you which is 12. Replace area of rectangle by its value. Length is given to you which is 2x plus 3. Width is given to you which is x minus 1. Now expand it. Now simply reduce it. 2x multiply the two bracket 2x multiplied by x, it becomes 2x square. 2x multiplied by minus 1, it becomes minus 2x. When you multiply 3 by x, you will get 3x. When you multiply 3 by minus 1, you will get minus 3 is equal to 12. So ये हो गया हमारे पास. हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया. नाउ जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं. 2x स्क्वायर 3x minus 2x become plus 1x minus 3. It was plus 12. After changing its position become minus 12 equal to 0. Equal to 0. इस साइड पे लगाएं या इस साइड पे लगाएं, एक ही बात है. 2x स्क्वायर plus 1x minus 3 minus 15 minus 3 minus 12 become minus 15 is equal to 0. ठीक है. So the first step is to reduce and makes it equal to 2x square plus x minus 15 is equal to 0. ये हमारा फर्स्ट 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया कि हमने इस a पार्ट को रिड्यूस किया, सिंप्लीफाई किया और इसको रिड्यूस करके बनाया जो रिक्वायर्ड थी हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. नाउ इसका जो b पार्ट है वो है सॉल्व. जो इसका b पार्ट है जो कुछ बोर्ड पे मेंशन नहीं है, बट द b पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व. अच्छा, वैसे तो ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग से भी हो जाएगा, बट बिकॉज आई एम डिस्क्राइबिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा. द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज द जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. It shows the coefficient of x square is said to be a, means x square के जो पहले coefficient है जो number है that is called a which is equals to 2. The coefficient of x is said to be b, x का जो पीछे number है coefficient that is called b, it shows b is equals to 1 and the constant number is said to be c, so c is equals to minus 15. तो पहले तो हमने वैल्यूज आइडेंटिफाई कर ली व्हाट इज a, b and c, बिकॉज व्हेन यू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac over 2a, you need these values, the values of a, b and c. The coefficient of x square is said to be a,
the coefficient of x is said to be b and the constant is said to be c. ये बात ध्यान में रखना. The general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0 where a can never be equal to 0. ठीक है, तो यहाँ पे a 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता. ओके, तो पहले हमने इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाई किया. 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15 हमने देखा कि ये अरेंज है. उसके बाद हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज सेड टू बी a, तो a की वैल्यू है 2. x का जो कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, b इज इक्वल टू 1, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है, c इज इक्वल टू माइनस 15. नाउ रिप्लेस दीज वैल्यूज. माइनस फॉर्मूले का द वैल्यू ऑफ b is 1 plus minus b square means 1 square minus 4 a means 2. The value of a is 2. 4ac. c means minus 15 over 2a. a means replace a by its value which is 2. माइनस फॉर्मूले का द वैल्यू ऑफ b इज 1 प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4 a मीन्स 2 c मीन्स माइनस 15 अपॉन 2a मीन्स a रिप्लेस बाय इट्स वैल्यू दिस 2. ओके, देन माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 4 to the 8, 15, 8 the 120. 4 to the 8, 8, 15 the 120 minus plus. When to same sign multiply, it will give positive answer. जब भी same sign multiply होंगे वो हमेशा positive answer देंगे. Now minus 1 plus minus 121 over 4. ठीक है, 121 means the root of 121 is 11 अपॉन में 4. ओके, तो यहां तक हमारा सॉल्व हो गया. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो प्लस माइनस है इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे. आई एम सॉल्विंग द रेस्ट वन ओवर हियर. -1 प्लस 11 अपॉन 4. एक आंसर यहां से आएगा, एक -1 11 के साथ प्लस माइनस है तो पहली बार प्लस 11 लिखा, इस बार -11 अपॉन में 4. 11 minus 1 10 अपॉन 4 मीन्स 5 अपॉन 2 मीन्स 2.5. सेकेंड वन -11 -1 -12 -1 -11 -12 upon 4 1 the 4 3. The second answer will be -3. So the two answers are 2.5 and -3. अब -3 तो हम नहीं ले सकते लेंथ. अगर हम -3 लेंगे तो हमारी जो विड्थ होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, लेंथ जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी. तो लेंथ और विड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं होता. सो -3 विल बी निग्लेक्टेड. तो हमारा जो आंसर होगा इट विल बी 2.5. x इज इक्वल्स टू 2.5 इज आवर आंसर. ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आपसे वो सवाल पूछ सकता है कि भाई इसका पेरीमीटर क्या होगा. इसके बाद आपसे ये सवाल पूछ सकता है, जब आपके पास x की वैल्यू आ गई तो वो पूछेगा फॉर एग्जांपल फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. तो आपके पास l की वैल्यू आ गई है, लेंथ आपके पास क्या थी 2x प्लस 3. आपने ये मिस्ट्री सॉल्व कर ली है कि x जो है वो 3 के x जो है वो 2.5 के इक्वल है. रिप्लेस x बाय इट्स वैल्यू 2.5. 2 इंटू 2.5 2.5 इंटू 2 5 plus 3 the length will be 8. लेंथ क्या हो गया हमारे पास 8. 2x रिप्लेस x by its value 2.5. 2 into 2.5 5 plus 3 8. अगर वो आपसे विड्थ मालूम करने का बोले तो विड्थ कैसे निकलेगी, x की जगह 2.5 minus 1 विड्थ भी 1.5. ठीक है, तो आपके पास लेंथ भी निकालने को कह सकता है, वो विड्थ भी निकालने को कह सकता है. और अगर आपसे पेरीमीटर निकालने का कहे तो आप ये 8 है, ये भी 8, ये 8 आई आपके पास लेंथ, ये भी 8 होगा, ये 1.5 है, ये भी 1.5 है. तो 8 plus 8 16 और 1.5 3. तो 16 plus 3 इसका पेरीमीटर अगर निकालने का कहेगा तो चारों को प्लस कर लो. 8 plus 8 plus 1.5
प्लस 1.5 तो 16 प्लस 3 19, ये इसका पेरीमीटर हो गया। तो इसके बाद सवाल कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको वो सवाल भी आना चाहिए आफ्टर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, सो दिस इज अबाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला। बेसिक क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, इक्वेशन को रिड्यूस कैसे करते हैं, ऐसे 2 3 4 और क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। आई विल शेयर इट विद यू। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।